is you can say flow of fluid through this pipe. Let me redraw this one again for your convenience, that you can get the idea that what's going on. Now look at this, the pipe. The pipe through which certain fluid is going to be traveling. Now whenever this pressure of fluid increases, this transmission of pressure will be go on where? On the diaphragms. Now this diaphragm, what is connected to a certain mechanism, levering mechanism, gear and lever. So what happens, this as this transfer diaphragm, this presses like this one, this pressure is applied on this diaphragm, this will deflect. So this deflection is to be carried out and indicated under the pointer. That's mean it indicate that how much pressure has been increased in that particular pipe or channel. Here from this can be the upward to the atmospheric pressure or any other liquid if there is this. So it will give you the differential pressure. So consequently, I am going to read this paragraph looking at this figure. The single diaphragm is the most simple form of the flat plate of a circular shape. This one, flat plate circular shape. Plate is fixed round the edges. That's the fixed round the edges. This one. When a differential pressure occurs across its plate, will deflect. It will deflect. Look at this. It is going to be deflected. Only for a relatively smaller movement, there is a linear connection between the pressure and the deflection, and some modification of this simple case desirable for the practical instrumentation. So it's very simple, but practically it is somehow complicated. The materials used for the diaphragm can be the steel plate. This plate can be the thin steel plate, or phosphorus, or bronze, or nickel, or silver, or beryllium, copper. So this plate can be made of these materials. Similarly, you can see the diagrammatic view. The differential pressure is applied on this side, and the applied pressure is from here. Now we are looking at the deflection. Deflection basically what whatever the displacement has been carried out, this displacement is to be indicated in terms of the pressure. Similarly, this can be in the form this form as well. Applied pressure on this side, and this deflection buckling will give the measurement of the pressure. So let me read again. Now this is a simple diaphragm. But now the diaphragm stake. So the diaphragm stake can be the you can say is the combination of different plates. Again, before going to the reading this paragraph, let me show the figure that how it is called a stake. Look at this, one plate is there, another plate is on that side. So it is a combination of different plates. Look at here, third figure. So many plates are there. One plate is there, another plate, circular plate. Though it makes a stake of that one. So whenever pressure is applied on this side, so because of having multiple combination of the plates, it will show more flexibility as compared to a single plate. So to achieve a more flexibility, this diaphragm stakes are to be made. So looking at these figures, I'll again come to the paragraph. For measurement of low pressure, an extremely flexible diaphragm is applied. The diaphragm assembly is made from the ring of fabric
with a disc of metal or other rigid material at the center. On center, there will be a rigid material, but on the sides, they may have the certain flexible material. So the principle of fabric or slack diaphragm differential pressure gauge is shown in figure. This is shown in this figure over here. So A is the fabric and B is the solid center piece, which is linked to the pointer of a reading pen that has been shown in this figure. In this figure here, the flexible material is a solid material, so it is connected to the pointer or some pen where all the. So let me bring this figure over there, so that will make you easy for understanding this paragraph. Okay, let me bring this one. So here is your figure, and I'm in perspective of this figure, I'm going to read this your paragraph. So let me get more visible. How I'm going to read. So the principle of fabric or select diaphragm differential pressure shown in figure. This one, fabric A. A is a fabric. This one is a fabric. And B is a solid centerpiece. The solid centerpiece, which is linked to the pointer. Is linked to the pointer or recording pen. With a select diaphragm, gauge is unnecessary for the diaphragm assembly to be circular, and quite often it may be elongated. So whenever you are saying this diaphragm assembly, so in the diaphragm assembly, let me explain this over here. Here is a complete, you are looking the complete assembly of the diaphragms, different diaphragms. So variety of material, leather, plastic, rubberized plastic, nylon, and silk is used. These gauges can use up to the 1 meter of water or 10 kilonewton per meter square. This range of the pressure that can be measured by this one. So it consists of a pair of circular. Now metallic capsule is that one. It is pair of circular metallic plate. Though these are consequently used. Metallic capsule, metallic stake. So whenever metal we call it the metallic capsule, it is basically combination of two plates. Pair of circular metal diaphragms connected back to back. They are connecting back to back over here. For an elastic capsule as shown figure, one pressure is applied inside the capsule. Pressure is applied in this size capsule, which is surrounded on the absolute outside of by the other pressure. The deflection of capsule is found as the linear relation between the pressure provided the movement is not excessive. So this linear pressure will be applied. This plate will make linear pressure on that one. This applied pressure. The diaphragm used capsule gauges are generally flat or corrugated in shape. Look at they can be a flat circular plate or this corrugated. This corrugated gives you the more flexibility as compared to the flat plate. Now diaphragm stacks. Now stacks is the combination of the more than two plates. So looking at a deflection can be made greater by combining the series of corrugated metal diaphragms, each containing a central hole. Each may have the central hole over here. एक होल होगा, दूसरा होल होगा. ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स में जब ये प्रेशर अप्लाई होगा तो it will give you the more flexibility. So number of diaphragm varies from 2 to 20. प्लेट्स कितनी होगी? 2 से 20 तक. Now metallic bellows. Again, before going to the paragraph,
Look at this figure. This is corrugated, you can cylinder. This is a cylinder, circular cylinder, but instead of the straight sides, their sides are corrugated. Why we are making the corrugated? Why, please? क्यों करते हैं हम इसको ये zigzag में? जवाब दें. इसको zigzag में क्यों किया हुआ है ये वाला सिलेंडर? Can you hear me? Can you hear me? Make it more flexible. ये corrugated होगा तो flexible होगा और जब है force apply होगा तो ये stretch भी होगा. So this device consists of thin ball tube in a corrugated shape. The bellows can be produced quite larger diameter up to the about 300 millimeter. Bellows material largely consists of the material कौन सा इस्तेमाल होता है इसमें? Brass, phosphorus, bronze, stainless steel और beryllium, वही वाला. So look at this one figure. It's a diagrammatic view. Of bellows. Look at how practically they are applied. ये इनपुट प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हुआ, बेलोज में क्या हुआ? स्ट्रेच डेवलप हुई. ये स्ट्रेच कहाँ पे डेवलप हुई? पॉइंटर पे ट्रांसमिटेड हो गई और पॉइंटर विल गिव यू द इंडिकेशन ऑफ द इनपुट प्रेशर. Similarly, here input pressure is applied, so diaphragm will valve deflection. Whatever the reflection is, we can write that is transmitted through the the quadrant gear, and through the quadrant this pointer gives you the indication of the pressure to be increased or applied on that one. Okay, so we have seen that we are having different type of pressure: gauge pressure, differential pressure. Now we are going to measure the absolute pressure. Do you remember how many types of pressure we will have to measure? Do you remember? कितने टाइप के प्रेशर थे? Let me show this that slide. So static और dynamic. No, उसके अलावा डिफरेंशियल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, जो चार. स्टैटिक प्रेशर, अच्छा बिल्कुल यार तुम सही बोल रहे हो कि दो टाइप के थे, लेकिन वी आर कंसर्न अबाउट द स्टैटिक प्रेशर. और स्टैटिक प्रेशर में ये चार थे. कौन से? ये पढ़ो: गेज प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, एब्सोल्यूट और वैक्यूम. हमने अब तक कितने पढ़े? गेज प्रेशर कर लिया, ये डिफरेंशियल हमने अभी कंप्लीट किया. नाउ वी विल गो फॉर द एब्सोल्यूट प्रेशर. सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? यस, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? Atmospheric minus gauge pressure. Gauge minus atmospheric. प्लस Yes. प्लस होता है, गॉज प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर. नाउ विल गो फॉर द एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट. Now this is absolute pressure. Now we've seen the barometer. We have seen the barometer. हमने किया था ना barometer. हमने किया, सॉरी, सिस्टर्न मीटर किया था. If you remember, सिस्टर्न मीटर. एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है बैरोमीटर. और बैरोमीटर का मॉडिफाइड, सिस्टर्न मैनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वो बैरोमीटर होता है. इफ आई टेक यू टू सिस्टर्न मैनोमीटर, सिस्टोमीटर में क्या होता है? ये था हमारा सिस्टर्न मैनोमीटर.
Yes, this was cistern manometer. बैरोमीटर इसका मॉडिफाइड फॉर्म है. क्या मॉडिफाइड फॉर्म है कि ये अब P2 जो है यहाँ पे, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया और एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया. तो इसमें क्या होगा, प्रेशर में एड अप हो जाएगा प्रेशर एनवायरनमेंट. तो कीपिंग दिस figure in your mind. So let me again bring this figure with the barometer, then it will clear that how it is modified form of cistern manometer. Yes, I'm keeping over here this figure near to this one. यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ करके. ये आ गया सिस्टर्न मैनोमीटर. क्या बोल रहा है, a barometer is a modified form of cistern manometer. Here is a cistern manometer. By closing its one end of tube. अब हमने क्या कर दिया, ये इस ट्यूब का वन एंड जो है ना वो क्लोज कर लिया. The equation of indicating the pressure difference, cistern manometer की हमने इक्वेशन ये डेवलप की थी. अब by making the pressure close, P2 क्या होगा, P2 अब ये हमने क्लोज किया तो P2 0 हो गया. ये P2 जो हो गया 0 हो गया. अब हमारी इक्वेशन ये हो गई, by making the pressure close perfect. अब हमने क्या किया, सिस्टर्न मैनोमीटर में ये P2 क्लोज कर लिया यहाँ से. तो अब इक्वेशन आपकी बन गई ये. Therefore the height of liquid column is proportional to the pressure. अब ये simple applied pressure हो गया. Now coming to the specifically toward the cistern. So this look at this one. क्या किया, ये सिस्टर्न मैनोमीटर है हमारा, इसको हमने कर दिया यहाँ से क्लोज. वही सिस्टर्न मैनोमीटर है ये वाला, यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज. अब यहाँ पे एक वैक्यूम डेवलप कर लिया. इसको नॉर्मली स्पेसिफिकली सच टाइप ऑफ बैरोमीटर इज कॉल्ड द Fortin type barometer. The person who has developed this type of barometer, whose name was Fortin. The particular case of cistern manometer where P1 is equal to the atmosphere. अब ये P1 क्या है आपका, ये अप्लाइड प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर का. अब थोड़ा इस फिगर को आप समझें. ये आपका एक मर्क्यूरी आ गई इस लेदर बैग में. तो आपने बैरोमीटर सुने होंगे. बैरोमीटर किस तरह काम करते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने मर्क्यूरी डाल दी और इसका दूसरा एंड कर दिया क्लोज और यहाँ पे कर दिया वैक्यूम. वैक्यूम का मतलब है कुछ भी प्रेशर नहीं. अब जितना भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो what will happen to that one, to level of this end, क्या होगा उसका, वो अप एंड डाउन होगा. और वो क्या होगा, वो बेसिकली इट विल बी द एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो ये बैरोमीटर है जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है. नाउ लेट मी रीड दिस वन. This is a particular case of cistern manometer where P1 is equal to the, P1 क्या हो गया, ये P1 जो इक्वेशन में हमने किया और दो चीजें की हमने, P1 को एटमॉस्फेयर कर दिया और P2 को कर दिया यहाँ पे 0. तो P1 हो गया एटमॉस्फेयर प्रेशर in which the height of mercury surface in the cistern can be adjusted. अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, हम इसको एडजस्ट करके ये लेवल मेंटेन हमने कर दी. फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर प्रेशर 14 psi था फॉर एग्जांपल. प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ये पॉइंटर से लेवल नीचे आ जाएगी और यहाँ से लेवल राइज होगी और इंडिकेटर होगा कि प्रेशर बढ़ रहा है. अगर प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा, पॉइंटर. अच्छा, हम री स्केलिंग के लिए ये होता है, री स्केलिंग के लिए कि आप इसको फॉर एग्जांपल 14 पे आ गया, आपने फिर इसको एडजस्ट कर लिया नीचे, तो हमें पता होगा कि पहले ये 14 था, अब और प्रेशर कम हो रहा है, सॉरी प्रेशर बढ़ रहा है. जैसे जैसे प्रेशराइज होगा प्रेशर बढ़ता जाएगा
या कम होगा तो ये ऊपर चला जाएगा. The cistern in this case is the leather bag supported by the bakelite housing. This is cistern. ये cistern ये है आपका leather bag है और ये इसकी housing है. The datum adjusting screw ये आप adjust करेंगे screw. Level for example कम हो रही है तो आप उसको बढ़ा के फिर ये लेवल वहीं पे लेके आएंगे कि भाई datum हमारा जो प्रेशर था वो था अब उससे बढ़ रहा है. So just makes a contact with the ivory index when a mercury surface is aligned with a zero on the instrument scale. So the indicated height of the mercury column in the glass tube, ये glass tube में आपका ये आपका glass tube हो गया ये वाला. And the glass tube then determined by the lining up the lower edge of the sighting ring with the top of meniscus. अब यहाँ पे meniscus को होगा ज़ाहिर है वो cohesive adhesive property की वजह से आपने क्या करनी है वो लोअर जो एज है उस पर स्केलिंग करनी है. तो वर्नियर स्केल इज देन रीड टू गिव द इंडिकेटेड मर्क्यूरी हाइट ऑफ द यहाँ पे टी पे किसी भी टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है तो वो मर्क्यूरी की हाइट आपको बताएगी कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ. ओके. Another type barometer, the aneroid barometer. So again, before going to this paragraph, look at this one figure. This is evacuated capsule is there. ये इसमें कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है. ये कैप्सूल सर्कुलर है ये कैप्सूल. जैसे हमने कैप्सूल पढ़े थे ना पिछले वाले डायफ्राम में, तो ये कैप्सूल होगा. सर्कुलर प्लेट दो ऊपर नीचे लगी होंगी. अब यहाँ पे जब ये अच्छा ये यहाँ पे इसमें वैक्यूम है. जब एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कैप्सूल दब जाएगा. अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा तो वो क्या होगी, फैल जाएगी. क्योंकि वैक्यूम प्रेशर जो है वो वैक्यूम जो है वो नॉर्मली एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है. तो अब ये पॉइंटर इसके साथ लगा एक फ्लैट स्प्रिंग लगा हुआ है, फ्लैट स्प्रिंग, एंड दैट डायफ्राम इज कनेक्टेड बाय द फ्लैट स्प्रिंग एक प्लेट के साथ. अब क्या होगा, जब ये ऊपर नीचे उठेगा तो ये पॉइंटर ये कनेक्टिव है लीवरिंग मैकेनिज्म के साथ. ये यहाँ पे पॉइंटर पे स्केल पे क्या होगा, ये पॉइंटर आपको विल इंडिकेट द changing in pressure. So let me read. An aneroid barometer consists of the sealed evacuated high vacuum capsule. So evacuated high vacuum capsule is there. The force on the bellow due to the atmospheric pressure changes is opened by the strong spring, and the motion of bellows as atmospheric pressure change transmitted through the mechanical magnification system. So here we use the mechanical magnification system. We have seen there are many mechanical magnification system. We can use a lever, gearing mechanism. So here is a mechanical magnification system is there. That will be connected to the pointer, which indicated the atmosphere pressure in millimeters of mercury on the scale as shown in the figure. Scale पे आपको atmosphere pressure. It's another type of atmosphere pressure measurement device. उसके बाद है vacuum pressure. How to measure the vacuum pressure? Now the gauge that is used for the vacuum pressure is known as the McLeod gauge. Again, the McLeod, a person who has developed this device. So just to get the idea of device, बना कैसे है, थोड़ा इसको समझें. आपको इसमें it is some are looking at the complicated system, थोड़ा complicated है. पहले इसका देखें, ये कैपिलरी A है, ठीक है. उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या है, खाली है, ठीक है.
और ये यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। बेसिकली आपको तीन, आप यू कैन सी द थ्री पाइप्स आर देयर, कैपिलरी ए, एक ये दूसरा ये है लिम्ब ए, और कैपिलरी बी, ये तीन चीजें हैं। ये तीनों कहाँ पे आके मिल रही हैं? दे आर मीटिंग एट दिस जंक्शन, लुक एट दिस जंक्शन। ये लिक्विड यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है और यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, और फिर ये लिक्विड कंटेनर में ये आके जमा हो रहा है। ठीक है, कितने कनेक्शन है? फोकस ऑन दिस junction. This junction is connected to the three pipes, capillary one on this side and limb, ये limb fix tube है, आपकी ट्यूब है यहाँ पे, और तीसरा इसका कनेक्शन है कैपिलरी। ये तीनों यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। अब करना क्या है? We are intent to measure the high vacuum pressure. कोई भी एनवायरनमेंट है, पाइप है जिसमें वैक्यूम डेवलप हो रहा है। अब ये वैक्यूम क्या करेगा? यहाँ पे प्रेशराइज करेगा लिक्विड को। अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है, वैक्यूम प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो इट विल कंप्रेस। अब इसने में हमने क्या डाल दिया यहाँ पे नीचे, अगर दूसरी फिगर, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हमने क्या किया कि ये वाली ये रिजर्वायर्स जो है ना, इट्स अ मूवेबल, ये पाइप मूवेबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस लेवल से ये जो जंक्शन है इसको मैं यहाँ से नीचे लेके आया। ये फिगर, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि उसको मैंने नीचे लेके आया। अगर मैं इसको नीचे लेके आया तो क्या होगा? ये वैक्यूम प्रेशर यहाँ, वैक्यूम यहाँ तक आ गया। अब ये वैक्यूम वाला प्रेशर इस साइड पे भी आपका, जहाँ पे स्केल लगा हुआ है, इस साइड पे आपका स्केल लगा हुआ है, अब यहाँ पे आ गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इसको मैंने बढ़ा दिया, ऊपर उठा लिया। ऊपर उठा लिया तो ये वाला, ये जो वैक्यूम वाला प्रेशर था, इसको ये लिक्विड दबाएगा। दबाएगा तो ये जो लिम्ब है, यहाँ पे ये सारा लिक्विड आएगा कि इसको इसने कितना प्रेशराइज किया स्केल पे। तो ये वाली हाइट आपको बताएगी कि हाउ मच द वैक्यूम प्रेशर, दिस बेसिकली दिस लिक्विड हैज कंप्रेस्ड दिस वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, नाउ अब आई एम गोइंग टू रीड। A McLeod gauge is consist of a sealed capillary A. ये कैपिलरी A जो है वो सील्ड है, यहाँ पे ऊपर से बंद है at the top, and the limb B, ये limb इसकी B है, ये वाली, and C, B और C दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से, और ये सारे कनेक्टेड हैं कहाँ, किससे? वैक्यूम से। They are connected with the vacuum. A and B are of the same diameter capillary. जो A और आपकी B है ना, वो दोनों सेम डायमीटर की होनी चाहिए। Which C is wider. C जो लिम्ब है वो थोड़ी वाइडर होगी, और and helps to reduce the error in capillary. ठीक है। Initially the movable reservoir is lowered. ये movable reservoir हमने इसको lowered कर दिया until the mercury column drops below the level of W opening. ये W कहाँ तक करना है? ये ओपनिंग जो है तीनों की, इससे नीचे करना है। At this stage all three limbs are connected to the pressure to be measured. अब ये तीनों लिम्स के कहाँ से कनेक्ट हुई? जिसका प्रेशर आपने मायर करना है, वैक्यूम प्रेशर से कनेक्ट हो गई ये वाली। अब क्या करना है हमें? द रिजर्वायर इज देन रेज्ड, फिर रिजर्वायर को ऊपर उठाना है। द मर्क्यूरी फिल्स द बल्ब, अब ये मर्क्यूरी आपकी क्या बल्ब को भी फिल करेगी, एंड द राइजेस इन कैपिलरी ए, कैपिलरी ए में भी ये उठ जाएगी ऊपर, सच दैट गैस ए इज कंप्रेस्ड, ये जो गैस वैक्यूम प्रेशर वाली गैस है ना, वो भी कंप्रेस होगी। अच्छा, ये वाली क्या होगा? ये वाला वैक्यूम प्रेशर जो, इसमें असल में हो क्या रहा है, ये जो गैस है वैक्यूम वाली ना, वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई इस तरफ से। अब यहाँ पे जो वैक्यूम वाला ये वाला है, इसमें क्या आ गया? इसमें वो आ गई गैस, जो यहाँ से वैक्यूम प्रेशर वाली गैस थी, इसमें ही वो आ गई। अब ये क्या कर, लिक्विड इसको दबाएगा, और वैक्यूम प्रेशर जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, उसका मतलब है कि ये वाला प्रेशर इक्वल है उस वैक्यूम प्रेशर के, क्योंकि ये वैक्यूम हमने ट्रांसपोर्ट किया गैस, कोई भी गैस है जिसका प्रेशर
लोअर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से लोअर प्रेशर है। तो हमने इसमें क्या किया, बेसिकली हमने इसको ट्रांसमिट करके इस लिम्ब में लेके आए। अब जब हमने इसको ऊपर उठाया तो यहाँ पे क्या आ गया, वो गैस आ गई जिसका प्रेशर हमने मालूम करना था। So in practice, the mercury in B is always raised at the same level at the top of capillary A. इसको ऊपर उतना उठाएंगे दोनों की ये लेवल सेम हो जाए, which is 0 on a scale. The gas in limb A is compressed according to the Boyle's law. ये गैस कंप्रेस हो रही है यहाँ पे Boyle's law के हिसाब से। So if V1, अब equation ये हो गया इसका mechanism, working mechanism. Now we'll go for the equation, how the equation is developed. टाइम कितना हुआ है अभी है? अब ये वॉल्यूम V is the volume in bulb and limb A above the level. ये कितना वॉल्यूम है? ये A लिम्ब है, इसमें कितना वॉल्यूम है? बल्ब से के साथ W के ऊपर कितना वॉल्यूम है, ये वाला, ठीक है। P the pressure of gas in system connected to the B. ये B आपका प्रेशर है, कितना ये प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है B to C में। अब ये वॉल्यूम होगा, और V is the volume of a gas sealed in the after the compression. ये वॉल्यूम हो गया किसका? ये वाली गैस, ये वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों। P1 is the pressure of gas on the limb after the compression, और P1 प्रेशर है, इसका प्रेशर, P प्रेशर इसका, V वॉल्यूम इसका, स्मॉल v वॉल्यूम इसका और कैपिटल वॉल्यूम इसका। अब हम करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में P1 PV इज इक्वल टू P1 V1, इसका प्रेशर और इसका वॉल्यूम, इसका प्रेशर और इसका वॉल्यूम ये हो गए बराबर। तो P आपका जो है P वो क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस, ये गैस का प्रेशर बराबर हो गया P1 V स्मॉल और कैपिटल V। और हमें पता है कि V जो है वो जो स्मॉल V है आपकी, ठीक है, वो हमें पता है, उसका वो वॉल्यूम है A और H के मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया इसकी हमें पता है ट्यूब की, और हाइट कितनी से रेज की है। तो जस्ट H इज H क्या है? प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच में। ये H क्या है? H लेवल कितनी होगी? जितना डिफरेंशियल प्रेशर होगा उतनी लेवल होगी। तो P1 इज इक्वल टू H प्लस P। अब यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, ये सारी इक्वेशन, ये P1 और ये V डाल दी इस इक्वेशन में, इस वाली में। तो वो फाइनली हमें इक्वेशन ये आ जाएगी। तो आपका जो प्रेशर अप्लाइड होगा, वी कैन मेजर द एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट स्क्वायर, और वॉल्यूम है हमें पता है कि इसका वॉल्यूम कितना है, और इसकी एरिया और H1 हमें पता है। तो बाय कैलकुलेटिंग दिस विल गेट द प्रेशर ऑफ दैट वन। यस, एनी क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन समझ में आया या थोड़ा डिस्कस करना चाहते हो? सर इसमें बल्ब का काम क्या है? बल्ब का काम सेंसिटिविटी है। जितना बल्ब ज्यादा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल बल्ब का हम डाया बढ़ा देंगे तो स्केल उतना ज्यादा ऊपर रेज होगा। अगर बल्ब का हम डाया बहुत ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा? लेवल जो हम जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, डू यू रिमेम्बर द थ्रेशोल्ड? तब तक ये मर्क्यूरी ऊपर नहीं उठेगी जब तक ये बल्ब फिल नहीं होगा। बल्ब का हमने ज्यादा, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं बल्ब बहुत ज्यादा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा कर लेता हूँ, तो क्या करूंगा? मुझे ये लेवल इसकी बहुत ज्यादा ऊपर उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये बल्ब फिल तब तक होगा जब जितना ये ज्यादा उठेगा तब ये बल्ब फिल होगा। अगर बल्ब की डाया कम होगा तो मैं इसको थोड़ा सा उठाऊंगा तो बल्ब फिल हो जाएगा, और कैपिलरी में हमारा वो जो है फ्लूइड लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली थ्रेशोल्ड आपका डिपेंड करता है इस पे कि किस लेवल के बाद, कितनी हाइट के बाद ये बल्ब फिल, ये मर्क्यूरी में जो, ये कैपिलरी में जो आपके मर्क्यूरी है वो ऊपर उठना शुरू होगी।
जैसे थर्मामीटर में बल्ब मैंने आपको बताया था, थर्मामीटर में बल्ब होता है ना, वो काय के लिए होता है? थ्रेशोल्ड करने के लिए कि भाई अगर बल्ब ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बल्ब में एक्सपेंशन से बाहर निकलने के लिए। अगर बल्ब का डाया होगा तो बल्ब जल्दी से भर जाएगा और जल्दी से कैपिलरी ट्यूब आपके आउटपुट देना पड़ेगी। तो थ्रेशोल्ड हम जो बनाते हैं वो नॉर्मली इस बल्ब के हिसाब से बनाते हैं कि मिनिमम कितने कितने प्रेशर के बाद वो इंडिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाए। ओके सर। यस एनी ॿिया किथे आहिनि मतिलबु हिकिड़ो मिंट ॿियनि खां अॼु थोरो इंटरेक्शन कयां। यस 103 ओ यस 101 02 02 Yes, sir. where are you, what are you doing? थोड़ा मुझे समझाओ, क्या समझा मैक्लाउड गेज में? सर नॉट दैट इंडिविजुअल, उसमें क्या समझा, लेकिन प्रेशर डिफरेंसेस या जी सर। चलो जनरली थोड़ा जनरल डिस्कस, कितने टाइप के प्रेशर मेजरमेंट हमने हमारे पास थे? सर यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के प्रेशर मेजरमेंट थे, एक एब्सोल्यूट था, गेज था और डिफरेंशियल था। डिफरेंशियल था और चौथा रिमोट रिमाइंडर। 4 थे। चौथा वैक्यूम। यस 155 यस 155 155 No 155 Yes 29 29 Yes 29 No निंड पे मूंखे लगे थो। Yes 23 23 23 अब अटेंडेंस कैसे मैं दूं? आप लोग मुझे रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। हाउ कैन यू गेट द अटेंडेंस? Yes 113 113 केॾां विया बा? सुम्ही पिया? चलो ठीक है, आज तक इतना काफी है। जी सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर ये 18 बैच का ऑनलाइन मिड्स एग्जामिनेशन है क्या?
नहीं वो कोशिश करेंगे कि फिजिकल हो, कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, तो लेकिन वी आर इंटेंट टू टेक इट फिजिकली। ओके, यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि फिजिकली आप लोगों को ऑन बोर्ड लें, लेकिन सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन देयर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा सर, ठीक है, ओके सर। सही सर। जी जी जी, गवर्नमेंट सर सही है। जी गवर्नमेंट तो कहती है यार, कि जो है बस वो वैक्सीनेशन आपकी हो जाए तो दे विल बी कॉलिंग यू। गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दुगली बातें कर रही है, जी कभी करती है बिल्कुल बंद। अभी ये जो डिसीजन आया 23 को, हम बिल्कुल प्रिपेयर थे, यूनिवर्सिटी बिल्कुल प्रिपेयर थी कि फिजिकली बुलाते, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन क्या निकाला, कंप्लीट क्लोज। जी जी सर, अभी 30 का बोला है और बाकी कहा है कि अगर वैक्सीनेशन से अगर आप हो जाते हैं, तमाम स्टाफ वैक्सीनेटेड हो जाता है तो हम जा रहे हैं। देखिए मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होती है जी जी अचानक। सर। तो ये 23 वाला पहले क्लियर था कि खोलेंगे वैक्सीनेशन के साथ अलाउ करेंगे, फिर ऐलान कर दिया कि बंद कर दें। जी जी सर। जी सर। तो कंफ्यूज किया हुआ है गवर्नमेंट ने काफी, वो खुद भी कंफ्यूज है मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल। अब अल्लाह खैर करेगा, 30 तारीख नजदीक आएगी तो पता चलेगा क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर। बट बिल्कुल सर। हमारी यूनिवर्सिटी की इंटेंशन ये है कि आ जाए तो बेहतर है। जी सर। तो बिल्कुल रिमोटली सर। चीजें कर तो रहे, लेकिन वी आर नॉट, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं है इसलिए सेटिस्फाई। जी सर। चलो ठीक है, फिर भी गाड़ी चलती रहे अच्छा है, खड़ी होने से बेहतर है स्लो स्लो चलती रहे। जी जी सर। ओके, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफ़िज़।